हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं सोनू राम के वी क्लासेस सरदुलगढ़ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਪੀਡੀਐਫ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੀਡੀਐਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੌਰੀ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5th ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਡੀਐਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਕਰੋ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉੱਥੋਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੀਡੀਐਫ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਰੋਮ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਸਾਈਡ ਐਨ ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ the length of the perpendicular to three sides are P1, P2 and P3. What is the length of each side? Question ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ। ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆ ਏ ਸਾਈਡ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਏ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਏ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਦਾ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆਫ 3 ਸਾਈਡਸ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ 3 ਸਾਈਡਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ 3 ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੇਤੇ ਨੇ P1, P2 ਐਂਡ P3। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੈਂਥ ਆਫ ਈਚ ਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਹਰੇਕ ਸਾਈਡ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ 4 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦੇਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਦੱਸਣੀ ਆ ਉਹ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਈਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਈਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਈਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਸਾਈਡ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਈਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ A B ਤੇ C। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ O ਲੈ ਲਿਆ। ਆ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ O ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ AB ਤੇ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, BC ਤੇ। ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, AC ਤੇ। ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰਸ ਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਕੀ ਦੇਤਾ ਜੀ, P1, P2 ਐਂਡ P3। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ P1, P2 ਐਂਡ P3 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇਤੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹੀ ਨੇਮ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ, P1, P2 ਐਂਡ P3 ਆਹੀ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਡਰੋ ਕਰ ਲਈ। ਡਰੋ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। O ਤੇ A ਨੂੰ ਡਰੋ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, O ਤੇ B ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਤਾ ਮੈਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ O ਅਤੇ C ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਬਣ ਗਈਆਂ। 3 ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ A O ਤੇ B, ਕਿਉਂਕਿ ਆ O ਹੈ, ਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, O ਹੈ। ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਆ ਜੀ, O ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਜੀ, A O ਤੇ B, ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ A O ਤੇ B। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਜੀ, B O ਤੇ C, ਆ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਜੀ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ B O ਤੇ C। ਥਰਡ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਜੀ, A O ਤੇ C। ਥਰਡ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਜੀ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ A O ਤੇ C। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ 3 ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਫਸਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ AOC, ਆਹ ਵਾਲੀ। ਦੂਜੀ BOC ਬਣ ਗਈ, ਆਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ। ਤੀਜੀ AOC, ਆਹ ਤੀਜੀ ਬਣ ਗਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਲੱਸ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਲੱਸ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ट्रायंगल है। तो मैं की किया एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC तो इज इक्वल टू मेरे को की आ जाएगा, इज इक्वल टू की आ जाएगा जी, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जोड़ा एरिया है वो क्या आएगा जी, मैं इत्थे लिख देना एरिया ऑफ ट्रायंगल AB ते C, ABC ट्रायंगल का की आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तिना ट्रायंगलों का जोड़ा एरिया है वो बराबर की आ जाएगा ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है जी। तो सब तो पहला तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB लैने AO ते B का एरिया कितना आएगा। AOB दे विच मैं देखा तो आ मेरे को मैं जे बेस लवां, आ की ले लिया जी मैं बेस, AB जे मैं बेस लवां तो आ मेरे को की है जी परपेंडिकुलर है। आ देखो AB मैं की लिया जी, आ वाला AB है, AB मैं की है इत्थे ले लिया, आ मेरे को की है जी बेस है P1, आ मेरे को की है जी P1 बेस है, आ की है जी O है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हाँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल की होंगे जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल होंगे 1/2 बेस, बेस कितना है जी हाँ A, बेस कितना है मेरे को AB तो AB की वैल्यू आप कितनी ली है A, तो 1/2 A इंटू हाइट, हाइट कितनी है जी P1, हाइट कितनी है P1। क्लीयर है जी। आ मेरे को ट्रायंगल की कि ट्रायंगल का एरिया आ गया, ट्रायंगल ऑफ एरिया AOB। इस तरह मैं ट्रायंगल ऑफ एरिया BOC लवां तो BOC दे विच बेस मेरे को की आ गया A आ गया, तो 1/2 बेस कितना आ गया जी A, तो हाइट इसकी कितनी है जी P2 है, प्लस इस तरह मैं जी आ वाली ट्रायंगल लवां, इस ट्रायंगल का जोड़ा एरिया आएगा वो कितना आएगा 1/2 बेस, बेस इसकी कितना जी वही सेम A है, तो हाइट इसकी मेरे को कितनी होगी जी P3 होगी। ठीक है जी। इज इक्वल टू की आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ABC मेरे को की है जी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, की है दोस्तों ABC मेरे को की है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जोड़ा एरिया होंगे वो कितना होंगे √3/4 A स्क्वायर, √3/4 A स्क्वायर। जिस दिन आप मैंसुरेशन की शुरुआत की सी, तो मैंसुरेशन की शुरुआत के मैं तुम्हें दसिया सीगा भी जी इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है जी। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जोड़ा एरिया है भावें इन सर्कल है भावें सरकम सर्कल है वो तुहानूं दस्सिया सी भी याद कर लेने हैं, तो एरिया तुहानूं डायरैक्ट याद होना चाहिए है। तो √3/4 A स्क्वायर आ गया। ठीक है जी। हुण देखो जे दोनों पासे मैं देखा A ते A कॉमन आ जाएगा, इधरों A इधर A स्क्वायर पे तो A स्क्वायर नाल A की हो जाएगा जी कैंसल आउट हो जाएगा। की हो जाएगा दोस्तों कैंसल आउट। होर की कैंसल आउट हो जाएगा 2 पे है 2 2 एंड 2 2 2 जा कितना आ गया जी 4 आ गया, कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया। 4 आ गया तो हुण इत्थे कितना बच गया जी सिर्फ A बच गया, A बच गया। आ 2 इधर आ जाए मल्टीप्लाई हो गया, √3 भी इधर आ जाएगा बटा च आ जाएगा। इत्थे कितना बच गया हुण कल्ला P1 बच गया, प्लस कितना बच गया जी P2 बच गया, प्लस कितना बच गया जी P3 बच गया। आही मेरे को की आ गया जी A की वैल्यू आ गई। A की वैल्यू मतलब की आ गया जी साइड ऑफ ट्रायंगल आ गया। आही क्वेश्चन उन्हें पूछा सीगा वट इज़ द लेंथ ऑफ ईच साइड, भी जी इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो हरेक साइड की जी लेंथ है वो कितनी होगी। तो हरेक साइड अपने को क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हरेक साइड की होगी बराबर आएगी, तो बराबर आप कितनी ली सी A ली सी। तो A की वैल्यू अपने को कितनी आ गई जी 2/√3 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 मेरे को की है जी परपेंडिकुलर ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो दोस्तों आज जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन है जो एग्जाम के बहुत बारी तुहानूं देखने को मिलता है। तो अपने को एक किस्म की डेरीवेशन निकल के आ गई है, इस डेरीवेशन को तुसीं डायरैक्ट याद कर लेना है ताकि एग्जाम के बार बार अपन इसनूं ड्राइव करने की लोड़ ना पवे। जे याद कर लोगे तो बेस्ट है, याद हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ 2 या 3 बार करके देखना याद हो जाएगी। ठीक है जी। भी A की जी वैल्यू आती है इक्विलेटरल ट्रायंगल के जी साइड आती है इन द फॉर्म ऑफ परपेंडिकुलर वो कितनी आती है 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3 आती है। क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन तुहानूं आ डेरीवेशन ना पूछ के एग्जाम के क्वेश्चन तुहानूं उल्ट पूछ लैंदा है, होर तरीके नाल पूछ लैंदा, वो तुहानूं परपेंडिकुलर की वैल्यू दे सकता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू सपोज करो इत्थे मैं तुहानूं दे दिना, इस क्वेश्चन के मैं तुहानूं कह दा भी कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिस दे परपेंडिकुलर जिहड़े हैगे है P1 P2 P3 ना के वो इत्थे वैल्यू दे देगा इन्हां दी भी मेरे को जिहड़े परपेंडिकुलर है 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर के कितने है जी
5 सेंटीमीटर है। आ परपेंडिकुलर नहीं तो वो तुहाडे तो पुछ लेगा भी जी ट्रायंगल आएगी उस ट्रायंगल की हरे सॉरी जी ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल वो लेंथ कितनी आएगी, तो मेरे को वैल्यू कितनी आ गई जी P1 की 3 है, P2 की 4 है तो P3 की कितनी है जी 5 है। तो हुण जे मैनू डेरिवेशन डायरैक्ट याद है तो मैं डायरैक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा, अदरवाइज आपां सारा कुछ की करना पएगा ड्राइव करना पएगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आ गया तो मेरे को जी ए की वैल्यू पुछ ली तो मैनू याद होना चाहिए भी फार्मूला की होंगे 2/√3 P1 + P2 + P3। P1 की वैल्यू कितनी है जी 3, P2 की वैल्यू 4 तो P3 की वैल्यू कितनी है जी 5 है। तो 2/√3 3 + 4 7 7 + 2 कितना आ गया जी 12 आ गया। आही मेरे को कितना आ जाएगा जी आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आही मेरे को की हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी तुहानू एग्जाम के आ सकता है। PDF का जो नैक्सट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन वो इस दे रिलेटेड क्वेश्चन है, तुसीं अपने आप प्रैक्टिस करोगे। चलो देखते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी देखते हैं नैक्सट क्वेश्चन जो PDF का जो 6th क्वेश्चन तुहानू मैं दसता 6th क्वेश्चन जो डिटो क्वेश्चन है जो आप पिछला 6th क्वेश्चन किया जमा उस दे नाल दा, तो तुसीं प्रैक्टिस करियो। ठीक है जी, तो कमेंट करके मैनू दस्सिओ भी आंसर कितना आ रहा है। ठीक है जी, इस तो बाद जो कोई डाउट होया तो मैनू ग्रुप के सेंड कर सकते हो WhatsApp के। ठीक है, उस मैं तुहानू सॉल्व करके क्वेश्चन भी भेज दूंगा। इस तो बाद अगला नैक्सट क्वेश्चन अपना की कहता है द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4√2 + 4 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो दोस्तों राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल आप डिस्कस किया होया है, वह फार्मूला भी मैं तुहाडे नाल डिस्कस किया होया तो वह हाइपोटेनियस भी तुहाडे नाल मैं डिस्कस की हुई है भी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जी तो वह हाइपोटेनियस कितनी होएगी। ठीक है जी, किस टाइप की ट्रायंगल सीगी वो, इस टाइप की कोई ट्रायंगल सीगी, राइट एंगल भी सीगी ते आइसोसेलेस भी सीगी। राइट एंगल भी सीगे ते आइसोसेलेस भी सीगी। ते तुहानू दस्सिया सीगा राइट एंगल आइसोसेलेस दे विच जे आ एंगल 90 डिग्री का है तो आ साइड भी ए होएगी तो आ साइड जे ए है, क्योंकि इक्विलेटर है सॉरी आइसोसेलेस है तो दो साइड्स की होंगी बराबर होंगियां, बराबर आ वाली साइड होएगी तो आ वाली साइड होगी, क्योंकि हाइपोटेनियस हमेशा की होंदा है सब तो ज़्यादा होंदा है। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू तो मैं डायरैक्ट भी दसी हुई है √2a। जे राइट डायरैक्ट याद नहीं होंगी तो आपको वैसे भी पता है जी पाइथागोरस थ्योरम अपनी को लगती है। पाइथागोरस थ्योरम का की फार्मूला है, जे आ ट्रायंगल मैं ए लै ला B लै ला तो C लै ला। ठीक है जी, तो पाइथागोरस थ्योरम की कहती है भी जो हाइपोटेनियस का स्केयर होंदा है, हाइपोटेनियस का स्केयर वो किहदे बराबर आउंदा जी, बराबर होंदा वो बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर, इस दे बराबर होंदा है। मतलब की आ गया जी पंजाबी दे विच मैं गल करां तो करण का जिहड़ा स्केयर होंदा है वो आधार का स्केयर बराबर किहदे होंदा जी लंब का स्केयर होंदा है। आधार का स्केयर प्लस किहदे बराबर होंदा जी लंब का स्केयर होंदा है। तो इत्थे जे मैं देखा परपेंडिकुलर कितना है जी मेरे को, या बेस कितना है जी, बेस मेरे को की है जी ए है, तो ए का स्केयर आ गया जी प्लस परपेंडिकुलर कितना है जी ए है, तो आ भी कितना आ गया जी ए का स्केयर आ गया। कर्ण कितना है जी AC, कर्ण कितना है मेरे को AC, तो AC का मैं की ले लिया जी स्केयर ले लिया। तो AC का स्केयर जो मेरे को कितना आ गया जी √a² + √a² कितना आ गया जी 2a² आ गया। a² + a² कितना आ गया जी 2a² आ गया। तो जे इतों मैं सीधा AC की वैल्यू कटा तो AC की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई जी √2a², तो √2a² का मतलब कितना आ गया जी AC की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई √2a आ गई। जो फार्मूला डायरैक्ट याद कर लोगे तो बेस्ट है, अदरवाइज आपको की है एक दो स्टैप इस तरह आपको करके देखना पै सकता है। ठीक है जी, तो इस तो बाद इन्हें की पूछ लिया हाइपोटेनियस की वैल्यू पूछ ली, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू दसो भी इन्हों विचों किहड़ी हो सकती है, चार आपको ऑप्शन देतियां। ठीक है जी, हुण देखो AC की वैल्यू या AC की वैल्यू कह लो या √2a की वैल्यू कितनी होगी वो वैल्यू इन्हें पूछ ली। ठीक है जी, तो इन्हें की देता पैरीमीटर देता इस ट्रायंगल के। जे आप पैरीमीटर की जे गल करिए तो पैरीमीटर कितना है इसका, पैरीमीटर की होंगे सम ऑफ ऑल साइड्स, तो A + A कितना आ गया जी 2a आ गया प्लस √2a प्लस कितना आ गया जी √2a बराबर इन्हें पैरीमीटर दे कितना रखा जी 4√2 + 4 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, हुण देखो आपां नूं वैल्यू की चाहिए है जी √2a की वैल्यू चाहिए है। दो तरीके ने दे, या तो आप a की वैल्यू कढ़ लीए या मैं डायरैक्ट की वैल्यू कढ़ ला √2a की वैल्यू कढ़ ला। तो मैं क्यों ना डायरैक्ट इत्थे √2a की वैल्यू कढ़ ला, क्योंकि a की वैल्यू कढ़ के फिर a की वैल्यू इस पुट करनी पएगी, थोड़ा जिहा लेंथी जाएगा। मैं डायरैक्ट वैल्यू की कर लेना इत्थों
रूट टू ए दी कढ़ लेना। तो रूट टू ए दी वैल्यू मैं किवें कढ़ सकदा, मैं इस दे विचों कॉमन कढूंगा रूट टू ए। की कॉमन कढूंगा दोस्तों, रूट टू ए कॉमन कढूंगा। तो रूट टू ए जो मैं इत्थों कॉमन कढूंगा हाँ, तो इत्थे की बच जाएगा, रूट टू बच जाएगा। कितना बच जाएगा दोस्तों, रूट टू बच जाएगा। प्लस कितना बचेगा, इत्थे 1 बचेगा। प्लस कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। बराबर इत्थे कितना जी मेरे को 4 रूट टू प्लस 4 मैं एज इट इज ही लिख लिया। ठीक है जी, या मैं 4 कॉमन भी कर सकदा। तो 4 जो मैं कॉमन कढ़िया तो 4 कॉमन कढ़न तो बाद की बच गया जी, रूट टू प्लस कितना बच गया, 1 बच गया। इत्थे मैं ब्रैकेट भी इस तरह की लगा ली। ठीक है दोस्तों, तो हुण मेरे को देखो रूट टू प्लस 1 इत्थे है, रूट टू प्लस 1 इत्थे है, दोनों मेरे को की हो गई, कैंसल आउट हो गई। तो रूट टू ए की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई जी, 4 सेंटीमीटर आ गई। आही मेरे को आ गया जी, आंसर आ गया। यदा मतलब ऑप्शन किहड़ी आ गई जी मेरे को, ऑप्शन आ गई जी डी। ठीक है जी, इत्थों में भी तुहानूं थोड़ा जिहा डाउट होवे भी रूट टू ए कॉमन किवें कढ़ लिया। ठीक है जी, तो इहनूं मैं थोड़ा जिहा एक्सप्लेन कर देना भी रूट टू ए कॉमन किवें कढ़िया। इत्थे 2 है, 2 नूं मैं की लिख सकदा जी, रूट टू इंटू रूट टू लिख सकदा, क्योंकि जो 2 अंडरूट आपस दे विच मल्टीप्लाई होंदे ने तो 2 बन जाता है। तो 2 नूं मैं की लिखता जी, रूट टू इंटू रूट टू लिखता। ए ऑलरेडी मेरे को इत्थे हैगा जी, प्लस इत्थे भी की है जी, रूट टू ए है। तो हुण दोस्तों आप ईजिली कॉमन कढ़ सकते हैं। इत्थे भी ए है, इत्थे भी ए है, तो एक तो ए कॉमन आ गया, इत्थे भी रूट टू है, इत्थे भी रूट टू पिया है, तो रूट टू बाहर आ गया मेरे को। तो रूट टू बाहर आ गया, इत्थे कितना बच गया, रूट टू। ये आप ऑलरेडी बाहर कढ़ चुके हैं। तो इत्थे कितना बच गया जी, रूट टू भी बाहर चला गया, ए भी बाहर चला गया, तो कितना बच गया जी, रूट टू ए प्लस रूट टू। आही चीज़ आप की सी इत्थे लिखी सी। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आ क्वेश्चन भी तुहानूं समझ लग गई होनी। ठीक है जी, चलो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 PDF का जोड़ा क्वेश्चन है वो कहड़ा जी 9th क्वेश्चन है, तो बड़ा ईजी क्वेश्चन है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की कहता है, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 24 रूट 3 सेंटीमीटर। कितना है जी, 24 रूट 3 सेंटीमीटर। वट इज़ द रेडियस ऑफ इन सर्कल एंड सरकम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। तो तुहानूं दोस्तों मैं हुणे रीसेंट क्वेश्चन के डिस्कस करके गया सीगा भी रेडियस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंसुरेशन की जो आप गल करिए तो ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है, तो ट्रायंगल के जो आप गल करिए तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की गल कर ली जी, इन सर्कल की गल कर ली, तो की गल कर ली जी, सरकम सर्कल की गल कर ली। ठीक है दोस्तों, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जे आप इन सर्कल की गल कर लीए तो इन सर्कल किहदे बराबर हुंदा है, तो सरकम सर्कल किहदे बराबर हुंदा है। इन सर्कल स्मॉल आर, तो सरकम सर्कल की है जी कैपिटल आर। इन सर्कल किहदे बराबर हुंदा जी, a/2 रूट 3, a/2 रूट 3। तो आप सरकम सर्कल की जो गल कर लीए, कैपिटल आर की गल कर लीए, तो कितना हुंदा जी, a/रूट 3 हुंदा है। तो कहने का मतलब जे आपां ए की वैल्यू पता लग जाए तो आप इन सर्कल भी दस सकते हैं, तो सरकम सर्कल भी दस सकते हाँ। तो ए की वैल्यू आप किवें कढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें डायरैक्ट आपां पैरीमीटर देता, इक्विलैटरल ट्रायंगल का की देता दोस्तों, पैरीमीटर देता, उत्थों आप ए की वैल्यू ईजिली कढ़ सकते हाँ। किवें कढ़ सकते हाँ, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल जिहड़ी हुंदी है उहदियां सारियां साइड्स की हुंदियां ने, बराबर हुंदियां ने। तो हरेक साइड मैं की मान ली जी, ए मान ली। तो इस ट्रायंगल के जो मैं पैरीमीटर की गल करा तो कितना आ जाएगा जी, 3a आ जाएगा। a प्लस ए कितना आ जाएगा, 3a आ जाएगा। ठीक है जी, 3a की वैल्यू कितनी दे रखी है उन्हें, 24 रूट 3 दे रखी है। कितनी दे रखी है जी, 24 रूट 3 दे रखी है। तो 3 दे मैं 3 8 जा कितना आ गया जी, 24। a की वैल्यू कितनी आ गई जी, 8 रूट 3 आ गई। कितनी आ गई दोस्तों, a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 रूट कितनी आ गई जी, 3 आ गई। तो हुण आप ईजिली वैल्यू है जी कढ़ सकते हाँ। सरकम सर्कल की भी कढ़ सकते हैं, तो इन सर्कल की भी कढ़ सकते हैं हाँ। सरकम सर्कल की या इन सर्कल की आप जो गल करिए तो स्मॉल आर किहदे बराबर आ गया, a/2 रूट 3। ए की वैल्यू कितनी है जी, 8 रूट 3 बटा कितना आ गया जी, 2 रूट 3। तो रूट 3 नाल रूट 3 कैंसल हो गया दोस्तों, 2 4 जा कितना आ गया जी, 8। तो कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ गई जी, 4 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है जी, हुण देखो इत्थों मेरे को जो मैं बाई ऑप्शन पिक करना होवे तो 4 सेंटीमीटर मतलब एक वैल्यू है जी 4 सेंटीमीटर है, तो एक वैल्यू तो मेरे को 4 सेंटीमीटर है, तो 2 ऑप्शन तो मेरे को की हो गया दोस्तों, कैंसल हो गई। आ भी कैंसल होगी तो आ भी की होगी जी, कैंसल होगी। हुण जिहड़ा मेरे को आंसर है या तो आंसर ए है या आंसर की है जी, बी है। तो सब तो पहला देखो क्वेश्चन दे विच की पूछा होया उन्हें, वट इज़ द
रेडियस ऑफ इन सर्कल एंड द सर्कम सर्कल, मतलब उन्हें पहला इन सर्कल क्या होया है, पहला इन सर्कल क्या होया है, ਇਹਦਾ मतलब की क्या होया जी, उन्हें ਸਮੋਲ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਮੋਲ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ 8 ਅਤੇ 4 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ 4 ਅਤੇ 8 ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਹੈ ਜਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛੀ ਉਹਨੇ ਸਮੋਲ r ਦੀ ਇਨ ਸਰਕਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਮੋਲ r ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 4 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਿਊ 8 ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਿਊ 4 ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਗੀ ਜੀ, ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋਗੀ। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आप इत्थे भी छड़ सकते हैं, अदरवाइज जे तुसीं क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है तो कैपिटल आर की वैल्यू भी तुसीं कढ़ सकते हो। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है जी, a/√3 है, तो ए की वैल्यू आप ऑलरेडी कढ़ चुके हैं। ए की वैल्यू कितनी है जी, 8√3 अपॉन कितना आ गया जी, √3, तो √3 नाल √3 कैंसिल हो गया। आर की वैल्यू कितनी आ गई जी, 8 सेंटीमीटर आ गई। तो समॉल आर कितना आ गया जी, 4 सेंटीमीटर, मतलब इन सर्कल, क्योंकि देखो पहला जो कह रखा उही ਉਹਦਾ आंसर है, पहला इन सर्कल लिखा है मतलब स्मॉल आर लिखा है, तो स्मॉल आर की वैल्यू पहला 4 है, दैन की है जी कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है जी, 8 सेंटीमीटर है। तो अपने को आही की आ गया जी, आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है जी, तो अज के लिए इन्ना काफ़ी है दोस्तों। ठीक है, तो इस तो बाद जी मैंसुरेशन की है जी डेली तुहानूं वीडियो देखने को मिलेगी, तो ऑलरेडी तुहानूं मैं जो प्रॉमिस किया होया भी आप मैंसुरेशन के 200 तो लैके 300 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ क्वेश्चन है ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे। तो ट्रायंगल अपनी कंप्लीट जो हो जाएगी, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ भी रखांगे। ठीक है जी, तो वीडियो ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ लाइक ਅਤੇ शेयर जरूर करिया करो, ਤਾਂ जो मैक्सिमम ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स है इस चीज़ का बेनिफिट लै सकन, क्योंकि जी मैंसुरेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट रखती है पटवारी के एग्जाम के लिए। अदरवाइज तुहानूं पता है हरेक एग्जाम के मैंसुरेशन के 2 ਤੋਂ 3 क्वेश्चन तो आउंदे ही आउंदे नहीं। ठीक है जी, वो भावें एयरफोर्स का है, भावें आर्मी का है, कोई भी एग्जाम चक के देख लो, 1 ਤੋਂ 2 क्वेश्चन तो तुहानूं देखने को मिलते ही मिलते नहीं। बट जो पटवारी है तो पटवारी के मैंसुरेशन की जी वेटेज है दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है जी, तो इस करके जी वीडियो है वध तो वध शेयर करा करो। थैंक यू, धन्यवाद।